சேர்ந்தவர் தான். இன்னும் ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னா நேருவோட மருமகன், அதாவது இந்திரா காந்தியோட கணவர் ஃபெரோஸ் காந்தியும் இந்த ஜொராஸ்ட்ரிய மதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் தான். இது மட்டும் இல்ல, இன்னும் சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வந்து से मुट्ठी भर सच्चे सनातनी गौ हत्या के विरोध में कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन द लास्ट इंग्लिशमैन टू रूल भारत इन हिज ओन वर्ड्स मिस्टर नेहरू ने ये कानून नहीं बनने दिया। पर उनकी बेटी सवा सेर निकली। उन्होंने इलेक्शंस जीतने के लिए हमारे संतों को ये लॉ प्रॉमिस कर दिया, पर जब लॉ नहीं बना तो 1 लाख साधु संतों ने पार्लियामेंट को घेर कर न्याय मांगा, लेकिन उन्हें मिली गोलियां। 5000 से ज्यादा साधु संत, बच्चे और महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन मीडिया को चुप रहने के लिए कहा गया। न्यूज ने कहा कि सिर्फ 8 से 10 लोग मरे हैं, बट द विटनेसेस सॉ इट ऑल। रातों रात दिल्ली से लाशों को गायब किया गया। कांग्रेस सरकार लेड बाय इंदिरा गांधी ने हमारे 5000 संतों को जरूर खत्म कर दिया, मगर वो गोलियां सनातन की शक्ति को नहीं खत्म कर पाई। एंड स्ट्रेंजली बीजेपी की MP कंगना रनौत द्वारा बनाई गई फिल्म इमरजेंसी ने भी इस पूरे चैप्टर को गायब कर दिया। इट इज टाइम वी डिमांड अ लॉ टू सेव आवर मदर गौ माता। इट इज टाइम फॉर गौ रक्षा कानून। 1971 எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிறாங்க. அந்த எலெக்ஷனுடைய கோஷமே வந்து கர்பி ஹட்டாவ், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏழை மக்களை நாங்கள் ஏழையை அகற்றுவோம். ஹரியானாவுடைய முதலமைச்சர் பன்சிலால் இருக்கிறார். பன்சிலால் அவங்க சஞ்சய் காந்தியுடைய நெருங்கிய நண்பர். பன்சிலால் செஞ்ச முதல் வேலை ஹரியானால 297 ஏக்கர் விவசாயிகளுக்கு நிலத்தை பிடுங்கி மாருதி அந்த கம்பெனியை கொண்டு வராங்க. நல்ல நாள் வச்சுக்கோங்க, மாருதி கம்பெனி என்பது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கம்பெனி, இந்திய அரசுடைய நிறுவனம். அதே விவசாயிகளுக்கு நிலத்தை பிடுங்கி கம்பெனி கொண்டு வராங்க. சரி, கம்பெனி நிலத்தை கொடுக்குறாங்க, கம்பெனி கொண்டு வராங்க, அதை கூட மன்னிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற நாட்டுக்காக ஒரு தொழிற்சாலை கொண்டு வராங்க. அந்த கம்பெனியினுடைய முதல் மேனேஜிங் டைரக்டர் இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய பையன் சஞ்சய் காந்தி. 2 ஆண்டு காலம் மாருதி நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக மேனேஜிங் டைரக்டராக இருந்தாங்க. அப்ப எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்கள கார் பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் புக் பண்ணும், முதலே பணத்தை கொடுத்தா தான் ஒரு மாருதி கார் தயார் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் பெரிய குளறுபடி நடந்து அந்த கம்பெனி டேக் ஆஃப் ஆனாங்க. ஏன்னா சஞ்சய் காந்திக்கு வேற ஒரு வேலை இருந்துச்சு. ஸ்டெரிலைசிங் பீப்பிள், போர்ஸ்ஃபுல்லா பெண்களை கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்க கூடாது என்பதற்காக சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா மாருதி கம்பெனி கொடுக்க வேண்டிய கவனம் அவர் கொடுக்காதனால அந்த கம்பெனி கிட்டத்தட்ட திவால் நிலையில போச்சு. To protect a Muslim community from another Muslim community, a country came into existence whose army had majority Hindu soldiers and whose top generals were a Sikh, a Parsi, and a Jew. In 1947, the temporary nation Pakistan was born, because these people did not want to live in a country where Hindus were in majority. Okay brother, a separate nation was formed for Muslims, but after just 23 years, the Punjabi Muslims of this country decided that they would not live with Bengali Muslims. Then these Bengalis started getting murdered and raped systematically. Then these Bengali Muslims sought help from the country from which they had separated, from those Hindus with whom they did not want to live. Then the Indian army arrived, whose chief was a Parsi. The commander of the East Front was a Sikh and the commanding officer was a Jew. Along with this, 80% of the soldiers were Hindus. True example of unity and diversity. This army saved Muslims from the atrocities of Muslims in Bangladesh was established on the 16th of December. What can be a bigger example of the failure of the two-nation theory than this? Jai Hind. नारायण के आंदोलनों से देश में सुरक्षा और संविधान को खतरा हो गया है। आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। वो इस तरह परेशान हूँ इंदु, तुमने 11 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में डाल दिया है। पूरा देश खौफ में है। अलग अलग अफवाहें उड़ रही हैं, कोई सच्ची तो कोई झूठी। 15 अगस्त को एक बहुत जरूरी निर्णय लेने वाली हूँ। ये निर्णय सही होगा मैडम।
झरोका था क्या खुल गया, कहाँ से आ गई बता, ऐ खुदा इतनी बेकरारियाँ, बेकरारियाँ, बेकरार। उठाता है उसकी आवाज देश में गूंजनी नहीं चाहिए डंपी। प्रस्तुत है किशोर कुमार की आवाज में। ये किशोर कुमार के गाने अभी भी ऑल इंडिया रेडियो पे आ रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज देश में गूंजनी नहीं चाहिए डंपी। यार मैंने तो बंद करवाए थे। आई गेस वी शुड मेक एन एग्जाम्पल दिस टाइम। ये क्या हो रहा है? इस सब झुग्गी वालों ने सरकारी रोड पर कब्जा बना के रखा है। ट्रैफिक से निकलना मुश्किल है। This place stinks like shit. ये दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल। इसे लंदन या मैनहट्टन की तरह चमकना चाहिए, नॉट लाइक दिस। जरूरत नहीं है। सरकार आप सभी के लिए राजेंद्र नगर में नए मकान बना रही है, इसीलिए आप सबको यहाँ से हटना पड़ेगा। वो तो यहाँ से 2 घंटे दूर है, हर रोज सफर करना मुश्किल होगा। अगर आप लोग खुद नहीं हटे तो आपको हटाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट संजय जी की स्कीम के अंडर है और उनके ऑर्डर्स पूरे किए जाएंगे। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और कितने लोगों को हटाएगा तुम्हारे ये संजय गांधी? क्यों हम यही रहेंगे। चलिए आगे बढ़िए। संजय जी, विस्थापितों के लिए राजेंद्र नगर में जो हमने 10,000 मकान बनाए थे वो कम पड़ रहे हैं। क्यों? सर, वहाँ हजारों नहीं लाखों लोग रह रहे थे। चर्चिल ने ठीक ही कहा था, ब्लडी इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स। अब सरकार इसमें कर भी क्या सकती है? पकड़ के नसबंदी थोड़ी ना कराएगी। क्यों नहीं? जवान हो या बुढ़ा, spare nobody। नसबंदी बंद करो! नसबंदी बंद करो! नसबंदी बंद करो! जो राजी खुशी करवाए उसे इनाम दो। हाँ, पति का नाम बताइए। हाँ, दे दो। तैयार ना हो उसे सरकार को सलाम है। भागो, भागो, नसबंदी वाले आ गए। सलाम है, सलाम है। पापी है, पापी हम, तारो रे तारो। ना बार-बार सोचो, ना दाएं-बाएं देखो, बेखौफ रातों चलो, जल्लाद बन जाओ। है मोल क्या हमारा, ना ईंट है ना डाला, ये बोटियां है बोटियां। एक करोड़ से ज्यादा लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई है। लाख हजार இன்னைக்கு நம்ம பிரதமர் இந்திரா காந்திஜி எமர்ஜென்சியை ரத்து செஞ்சிருக்காங்க। इंडिया में हो या जीत, इसका फैसला तो सिर्फ जनता ही करेगी। जीत हासिल की मैं जगजीवन सोभी राम ईश्वर की
नमस्ते मैडम। नमस्ते। हमार मदद करा इंदिरा भैया। हमार गांव में बहुत दिन से लोगों ने खाना ना खाई ले। हमार गांव में पिछले 2 साल से अकाल पड़ल रही। कीजिएगा, आगे जंगल है, जंगली जानवरों का गलियारा है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। ये पूर्व प्रधानमंत्री की गाड़ी है और उनका बेलची पहुंचना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इसके लिए आपको सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आप? जयप्रकाश जी ने राजनीति छोड़ दी और जो बचे हैं उन्हें एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत कहाँ है? ये सरकार के नाम पे आप जो कर रहे हैं बहुत... ये आया राम यहाँ से आए और वो गया राम वहाँ से गए। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिश मत करो, डू यू अंडरस्टैंड? मुझे नहीं लगता उसके लिए मदद की आवश्यकता है। यूथ कांग्रेस बहुत डिमोटिवेट हो गई है। संजय को यूपी का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे क्या? अरे सीएम कैंडिडेट नहीं तो कुछ और ही बना देते। संजय, एक बात समझ लो, सब जगह ये बात फैल रही है कि तुम्हें पार्टी से दूर रखा जा रहा है। संजय, तेरी माँ तुझे इमरजेंसी का विलन बना रही है, एंड आई डोंट थिंक दिस इज गुड फॉर योर इमेज। एक बात समझ लो, सब जगह ये बात फैल रही है। Sometimes the thrill lies in सिख जवानों उत्ते हर वारदात दा इल्जाम लगाण दी जे किसी निरंकारी बाबे दी हत्या हो जावे आ पक्षपात करन वाले आ घटिया अखबार वाले जेड़े सिख बिरादरी नू एक दूजे तो दूर करन दी कोशिशा करदा हो ते इल्जाम मेरे ते ला दिंदे ने। और जे किसी नू भी लगदा है कि असी किसी दी कठपुतली आ तां उन्हां नू अपनी सच्चाई साबित करके रवांगा। Also bombed. Weapons in the Army construction complex in Golden Temple in Amritsar. Ramadura bunkers inside the Hazmi the சொல்லலாம். இந்த ஆபரேஷனுக்கு பிறகு 1984 அக்டோபர் 31, அதாவது ஆபரேஷனுக்கு பிறகு ஒரு 4 மாதம் கழித்து இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் 2 மெய்க்காவலர்கள், அவருடைய 2 சீக்கிய மெய்க்காவலர்களாலேயே சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார்கள். இது ஒரு பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாகவே கருதப்படுகிறது. ஸோ இதுக்கு அப்புறம் சீக்கியர்கள் மீதுக்கு எதிராக நடைபெறக்கூடிய ஒரு கலகம் ஏற்படுகிறது. அதிலும் சீக்கியர்கள் பலர் கொல்லப்படுகிறார்கள். இது வரலாற்று குறிப்புகள். இந்த ஆபரேஷன்